Students, our next two theorems are these two are converse of each other. So in first theorem, two wrenches are given which are at right angles to each other, and we have to find locus of central axis. Means if we convert two wrenches into a single wrench, then whatever will be the central axis of that common resultant wrench, we have to find that central axis. And in second case, any wrench means a wrench is given may be resolved into two wrenches. यहाँ पे हमें दो wrenches में resolve करना है, तो एक तरह से converse हो गए एक दूसरे का. So here I will prove only first theorem, and for second theorem you will do yourself. So let us start proof of first theorem. Two wrenches are given. Their intensities are x and y. Intensities means forces, and their pitches px and py. Means for a wrench, force is given, but this moment of couple is not given here, but in place of that we have pitch, and we know k by r is equal to pitch. So to find k we have pitch into r. मीन्स अगर हमें मूवमेंट ऑफ ए कपल निकालना है, के निकालना है, तो हम पिच और फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. सो हियर दिस इज फोर्स, दिस इज पिच. सो व्हाट विल बी मूवमेंट फॉर दिस फर्स्ट फोर्स? इट विल बी पिच इनटू एक्स, एंड फॉर दिस सेकंड फोर्स इट विल बी पिच इनटू वाई. सो नाउ व्हाट विल बी हियर? फर्स्ट रेंज इज एक्स पी एक्स एक्स. ये के है, ये आर है और ये के है. And for second we have y p y y. So pitch से हमने k कैलकुलेट कर लिया फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करके using formula of pitch. Now we'll convert these two wrenches r1 k1 r2 k2 into single wrench. हम इसे एक सिंगल wrench में कन्वर्ट करेंगे. Why? Because if we have wrench, then only you can find locus of central axis. But RK में जाने से पहले हम जाएंगे यहाँ RG में, and then we'll go to RK using that theorem which we already studied in forces in 3 dimension. टॉपिक में हमने की थी ये थ्योरम, वो थ्योरम यहाँ यूज करेंगे यहाँ से यहाँ जाने के लिए. बट पहले we'll convert R1 K1 R2 K2 into RG. बट ये तो काम हम अभी कर चुके हैं, हमने जो लास्ट वीडियो की थी उसमें भी ये किया था, तो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा करेंगे? इन दिस थ्योरम दीज टू रेंचेस आर एट राइट एंगल टू ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे का राइट एंगल है, ये एक पर्टिकुलर केस हो गया. सो हमने ये राइट एंगल वाला यहाँ पे कंसेप्ट पिक करना है, इसका थोड़ा फायदा उठा लेंगे और इसको आर और जी में कन्वर्ट करेंगे. तो ड्रॉ करते हैं फिगर. विल ड्रॉ एक्स पी एक्स एक्स वाई पी वाई वाई, और वो भी एक दूसरे का राइट एंगल. तो इसको x के अलॉन्ग ही ले लेते हैं और इसको y के अलॉन्ग ले लेते हैं. वी हैव x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. लेट अलॉन्ग दिस एक्सिस वी हैव x एंड pxx फर्स्ट पेयर, एंड लेट अलॉन्ग दिस लाइन वी हैव y एंड pyy second pair. So now they are at right angle to each other. Let us convert these two wrenches into R and G. This is R, this is R, and this is axis of couple whose moment is G. OA, OB. Let this angle is theta and let this angle is phi. R का एंगल हमने लिया है थीटा एक्स एक्सिस के साथ, और G का एंगल हमने R के साथ लिया है फाई. तो ये हमारी फिगर है. एक काम और करते हैं, OA का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं. OA का परपेंडिकुलर ये है. ऐसा क्यों किया अभी डिस्कस करेंगे. से दिस इज OC. नाउ व्हाट इज दिस एंगल? See, this line is y axis जो x का परपेंडिकुलर है, and this dotted line is
perpendicular to OA. So we can say 1 is perpendicular to 1 and 2 is perpendicular to 2. So whatever is the angle between 1 and 2 here, same angle here in between 1 and 2. So this angle is also theta. तो हमें ये एंगल मिल गया है. नाउ R और G पर जाना है. सो उसके लिए रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग x एक्सिस. R का कंपोनेंट x के अलोंग r cos थीटा, बट गिवन क्या है? कैपिटल X. रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग y एक्सिस. R का कंपोनेंट अगर x के साथ r cos थीटा है तो y के साथ क्या होगा? r sin थीटा, बट ये दिया हुआ है y, so this is equal to y. So we have resolving forces. After resolving forces we have r cos theta is equal to x and r sin theta is equal to y. Say equation number 1. Now हमने resolving कर लिए forces. Now we'll take moments. Taking moments. Number 1, about which line? Here we are taking about OA, not about x axis, y axis or z axis. Here we are taking moment about OA, this line. So now हमें पता है theorem of resolve part. Whatever will be the moment of resultant. अच्छा यहाँ पर मोमेंट का मीनिंग, जब मैं मोमेंट कह रही हूँ तो मोमेंट का मीनिंग है कि सबका मोमेंट लेना है. सबका मीन्स किस का? वी हैव x, वी हैव y, pxx, pxy, r एंड g, सारी टर्म्स का मोमेंट लेना है. बट r, यहाँ पे r का मोमेंट नहीं आएगा, किसी भी फोर्स का मोमेंट नहीं आएगा. वाई? तो फर्स्ट और सेकेंड आर्टिकल जो हमने किए थे उनमें फोर्सेस के मोमेंट आए थे, बिकॉज वहां पर एक हमारे पास z एक्सिस थी, एक उसके पैरेलल प्लेन था, एक उसके बैकवर्ड साइड में प्लेन था, तो अलग अलग प्लेन्स में काम कर रहे थे, तो वहां पर फोर्सेस के मोमेंट आए थे. बट यहाँ पर फोर्सेस के मोमेंट नहीं आएंगे. वाई? बिकॉज आप देख सकते हैं जितनी भी लाइंस हैं सारी की सारी O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीन्स सबका डिस्टेंस 0 है. और फोर्सेस के जब मोमेंट की बात करते हैं तो हमें फार्मूला यूज करना होता है. फोर्स के मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू साइन ऑफ एंगल इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. बट यहाँ पर सारी फोर्सेस O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. अगर मैं किसी भी फोर्स का किसी भी लाइन के अबाउट आपसे मोमेंट पूछूं तो डिस्टेंस तो 0 होने वाला है, और अगर डिस्टेंस 0 है तो सारी फोर्सेस के मोमेंट क्या हो जाएंगे? 0. ये फोर्स नहीं है, इसका नहीं, ये है फोर्स, ये है फोर्स और ये है फोर्स. ये जो तीनों मैंने अभी सर्कल किए हैं इनके मोमेंट 0 हो जाएंगे. ये तीनों तो खुद ही मोमेंट है, इनके मोमेंट हमें लेने हैं, तो हम इन तीनों के मोमेंट की बात करेंगे यहाँ पर. सो टेकिंग मोमेंट अबाउट OA, इसका मोमेंट OA के अबाउट, PXY का OA के अबाउट, G का OA के अबाउट. तो सबसे पहले G का देखते हैं. G खुद मोमेंट है, तो इसका मोमेंट OA के अबाउट लेने के लिए हमें सिर्फ इसका कॉम्पोनेंट लेना है, और G का कॉम्पोनेंट OA के साथ हो जाएगा G cos phi. G cos phi एंगल चाहिए, cos लगा दो उसके आगे. ये हो गया रिजल्टेंट का मोमेंट, इज इक्वल टू px का और pxx का pxy का मोमेंट. तो pxx कहाँ है? ये रहा, इस लाइन के अबाउट है pxx. pxx का मोमेंट OA के अबाउट लेना है, एंगल कितना है? थीटा. तो ये हो जाएगा pxx इंटू कॉस थीटा. pyy का हमें OA के अबाउट लेना है, अगर यहाँ थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, तो pyy cos 90 माइनस थीटा, दैट इज pyy साइन थीटा. नाउ x की वैल्यू पुट कर दें r cos थीटा और y की वैल्यू r साइन थीटा. तो वैल्यू पुट करने के बाद r कॉमन आ जाएगा एंड अंदर हो जाएगा px cos स्क्वायर थीटा प्लस py साइन स्क्वायर थीटा. So this is G cos phi. Say equation number 2. Now taking moment about, ये OA के about हो गया, taking moment about OC. OC मतलब जो OA का परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की थी, इसलिए ड्रॉ की थी क्योंकि हमने फर्स्ट OA के अबाउट लिया है, अब हम उसके परपेंडिकुलर यानी OC के अबाउट लेने वाले हैं. तो OC के अबाउट लेने के लिए सबसे पहले मुझे G का OC के साथ एंगल चाहिए.
जी का ओ ए के साथ फाई था, तो ओ ए के परपेंडिकुलर के साथ 90 माइनस फाई हो जाएगा, तो जी का ओ सी के अबाउट मोमेंट हो जाएगा जी कॉस 90 माइनस फाई, दैट इज जी साइन फाई। पी एक्स का ओ सी के अबाउट पूरा एंगल कितना है, x का y के साथ तो 90 है और फर्दर थीटा है, तो टोटल है 90 प्लस थीटा, तो पी एक्स का ओ सी के अबाउट मोमेंट हो जाएगा पी एक्स इंटू कॉस 90 प्लस थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा, तो यहाँ कर देते हैं माइनस साइन थीटा। अब पी वाई का देखें, पी वाई का ओ सी के साथ एंगल ये क्लियरली दिख रहा है थीटा, तो इसका मोमेंट हो जाएगा पी वाई इंटू कॉस थीटा। एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो आपके पास ये आ जाएगा आर पी वाई माइनस पी एक्स कॉस थीटा साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 3 जी साइन फाई। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 आ गई हैं। नाउ अब देखें इन दोनों को अगर आप स्क्वेयरिंग एडिंग करोगे तो आर आ जाएगा, डिवाइडिंग करोगे तो थीटा आ जाएगा, यहाँ स्क्वेयरिंग एडिंग करोगे तो जी आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करोगे तो फाई आ जाएगा। तो आर और जी तो आ चुका है, आर और जी हमारे पास आ चुका है, उनके एंगल्स भी आ गए हैं। अब हम इसको आर के तक लेकर जाते हैं, आर जी को कहाँ ले जाएंगे, आर के पर। इसके लिए हम फोर्सेस इन 3 डायमेंशन में जो हमने थ्योरम यूज की थी, प्रूव की थी जो थ्योरम, उसका यूज करेंगे यहाँ पर। वो थ्योरम मैं जल्दी से यहाँ पर एक बार उसकी स्टेटमेंट रीड आउट कर देती हूँ। आर जी तक हम आ चुके हैं, आर जी को आर के में लेकर जाना है। इसके लिए मैं जल्दी से थ्योरम यहाँ पर रीड कर रही हूँ। इन दैट थ्योरम हमारे पास आर और जी था एट एन एंगल थीटा, बट यहाँ पर फाई ले लेते हैं बिकॉज यहाँ एंगल फाई है, और आर और जी को ओ पॉइंट पर हमने ओ डैश पॉइंट पर आर और के में कन्वर्ट किया था, इफ यू रिमेंबर। तो ये डिस्टेंस कितना आया था हमारे पास, दैट डिस्टेंस वाज जी साइन फाई डिवाइड बाई आर, और के क्या था, के इज इक्वल टू जी कॉस फाई। हम आर और जी ओ को जब ओ डैश पर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन एंड दिस के इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, तो इसका यूज करते हैं यहाँ पर। सो हियर वी हैव आर एंड वी हैव जी, ये ऐसे इस प्लेन में है, ये लाइक दिस इज वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन में है। इस वाई जेड प्लेन में यहाँ आर है, यहाँ जी है, तो मैं इस थ्योरम को यूज करके आर और जी को आर के पैरेलल किसी पॉइंट पर से ओ डैश पर, आर के पैरेलल नॉट जी के पैरेलल, आर के पैरेलल आर और के में कन्वर्ट कर रही हूँ यूजिंग दैट थ्योरम। नाउ व्हाट इज के, जी कॉस फाई, एंड व्हाट इज दिस ओ डैश, दिस वन। नाउ we have to find, we have r and k now, हम r जी से r और k में आ गए हैं। now we have to find this locus of central axis, so this is central axis, जिस लाइन के along r होता है, जिस लाइन के about k होता है, वही central axis होती है। तो हमें इसका लोकस निकालना है। लोकस निकालने के लिए हम इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं, से p x y z। अगर ये x y z है तो इसकी प्रोजेक्शन, अगर मैं आर, ये लाइन बिल्कुल आर का पैरेलल है, थ्योरम ये कहती है कि ये लाइन आर का पैरेलल है, तो अगर इसकी प्रोजेक्शन लेंगे तो आर के ऊपर आएगी। सो इस प्रोजेक्शन के से क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स और वाई, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, जेड के पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, पी क्यू डिस्टेंस विल बी जेड। तो यहाँ पर मेरे पास z इज इक्वल टू, z मतलब पी क्यू और पी क्यू मतलब ओ डैश, सो इट इज ओ डैश, एंड व्हाट इज ओ डैश, g साइन फाई डिवाइड बाय r, एंड व्हाट इज g साइन फाई, g साइन फाई इज r पी वाई माइनस पी एक्स इंटू कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई r, और r आपका हो जाएगा कैंसिल। सो नाउ ये रिजल्ट आ गया, पी वाई स्टेटमेंट में दिया हुआ है, पी एक्स स्टेटमेंट में दिया हुआ है, बट थीटा नहीं गिवन, थीटा को रिमूव करते हैं। सो कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे। कैसे वैल्यू निकालेंगे,
तो जब मैंने इसकी प्रोजेक्शन दी यहाँ पर तो ये डिस्टेंस आपके पास z आया था, z मतलब o डैश, तो z का काम तो हो गया। अब एक्स वाई पर आते हैं, ये पॉइंट है एक्स वाई, इसको मैं y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो क्यू एम, ओ क्यू एम, ये ट्राइंगल अगर बाहर बना दे, ये यहाँ बना लेते हैं ट्राइंगल, ये ट्राइंगल मैंने यहाँ बना दी, ये एंगल है थीटा ओ क्यू एम। थीटा के फ्रंट में है 90 डिग्री, थीटा के यहाँ पे ये 90 डिग्री है। अब मेरे पास है ये y, ये x, उसी फिगर को यहाँ बनाया है, ये y और ये x है, तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एंड कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे आप उसकी, z इज इक्वल टू पी वाई माइनस पी एक्स, कॉस थीटा की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और साइन थीटा की परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स वाई पी वाई माइनस पी एक्स। सो हमें सेंट्रल एक्सिस का लोकस निकालना था, हमने उसके ऊपर एक पॉइंट लिया एक्स वाई जेड और उस एक्स वाई जेड में हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। सो दिस इज सेंट्रल एक्सिस, लोकस ऑफ सेंट्रल एक्सिस। थैंक यू।